Just give me a minute. Yes, recording is start now. Okay, so this particular paper or this particular syllabus or topic is important from exam point of view, and mains it is especially it is there in your mains examination. So the name of the topic or the question subject in question is here banking and general awareness. Okay, though the banking and general awareness is the name of this particular topic, this so in general awareness there are various things that are asked in your examination. By and large, this particular topic. So, if there are 40 odd questions in your mains examination, okay, I mean it's 35 to 40 questions are there in your mains examination. So, out of that 40, uh, hardly 15 to 20 questions are from uh, static awareness, or less than that. Okay. Okay. This topic is for banking. I mean, it is for all the uh, competitive examinations that is conducted by IBPS or for bank or LIC or staff selection commission or railway. So this is very common, or this is very uh, general awareness. So I just mentioned the name of banking because most of you are from are here for banking examination. So the syllabus of banking, the uh, the the syllabus for banking, the IBPS PO examinations name it as a banking awareness or general awareness. That is why I just mentioned the banking awareness name. But it is overall very essential subject for all the examinations. That is banking, insurance, staff selection commission, railway. Okay, this is there for your examination. So basically 15 to 20 or even less than that are for static examination, and 20 to 25 questions are for current affairs. So let us I will just give you the basic of static awareness, what is there to study, and I will give you the syllabus of current affairs for few minutes. Then we will jump to the our today's topic, that is basic general awareness. Okay, right. So basically the static awareness or the or general awareness, if you are focusing on bank PO examination, the this particular topic conducts following the points, or the syllabus of this particular topic is this: first, international organization, their headquarter, their heads, new heads or newly appointed heads, I would say. Okay, and various reports and indices published by that organization. Okay, for example,
the there is a report called Human Development Index. So it is published by UNDP, that is United Nations Development Program. Okay, this is there. Then so this is the and so we have to do the headquarter of UNDP. You must know its head. Okay, like there are many organizations, so you will be provided with almost 120 odd pages notes at the end of this the 4 year four lectures series or 4 to 5 lecture series. Then so you can prepare that particular notes or the static awareness information from that notes only. uh, okay, so this is the first topic that is there in your syllabus. Next is important countries, their capital, their currency, their presidents or prime minister or head of the state. Okay, so this is so for example the some countries are in news. Let us say for example Ukraine is in news. Okay, you must know the capital of Ukraine, that is Kiev. You must know the you must know the head of the state of that Ukraine. Okay, and you must know the currency of that particular state. Okay, so this is the static but based on current affair. Static but based on current affair part. Next is okay. Capital is so capital for example Ukraine's capital is Kiev, and Ukraine's okay. Then next important aspect is important new static awareness information from exam point of view is important national parks, wildlife sanctuaries, important rivers, not important rivers, I mean important projects on rivers, important hydroelectric projects on rivers or dams, etc. Nuclear power plant, etc. So this is the basic static awareness information about the India. So for example, national park. So they will ask you the so for example, where is Pench National Park is situated? Okay. So Pench National Park or Kanha National Park. So it is in Madhya Pradesh or Maharashtra. So border of Madhya Pradesh and Maharashtra. So they will ask you the Kanha National Park. So for example, like that only. Okay. So this is the so only the name and which state. So they will give you the name and you have to answer the state. So in which state this particular national park is or wildlife sanctuary is, or on which river particular hydroelectric power project is. Okay, or which dam is on particular river, or which nuclear power plant is in which state. Okay, so this is the static information.
Next part is from static awareness. So culture. So you will basically you will be asked sorry you will be asked about the various festivals of India, various dance forms, and say for example various handicrafts. Okay, and various martial arts, etc. So they will give you the name and state. Here also same name and state. Okay, name and state. Then next is country wise. Basically, in India, you must know the uh, all states of India, their capital. Of course, they will not ask the capital question, but they can ask the chief minister and governor. Okay, so for example, they will ask you who is the governor of Uttar Pradesh or who is governor of say for example Arunachal Pradesh, etc. So these are the static information that you must cover, that we must cover. Okay, so almost all these information that I am writing over here is will be covered in almost all the information that I am writing over here is will be covered in lectures, coming lectures. Okay. Next is important national organization and or important national organization, their head, national organization or bodies, various. Say for example, UPSC or Information Commission or Election Commissioner, okay, and their respective heads. Okay, or authorities. Okay, this is the static part, right? Next in line of static part is so culture हो गया. This is the national park and wildlife sanctuaries, etc. All that. Some concepts. So basically, especially for those who are focusing on banking examination, and of course also those who are focusing on other examination, but more importantly for students focusing on banking examination, you will you will get question on various conceptual understanding of banking or economic concepts regarding economy. Say for example, they will ask you about the inflation. So right now, India is facing tremendous inflation. So they will ask you about the types of inflation, or they can ask you about anything regarding the definition of inflation. What is the optimum level, or that can be bearable by any country when it comes to inflation, for example. Or they can ask you CRR, okay, or they can ask you deficits, very definition of the various deficits. So all these conceptual understanding regarding banking examination or economy, especially economy and banking. So economy and banking will be covered in this lecture, these lectures. And okay, so almost on this 7 to 8 odd topics, okay, there are though the number is 7, there are almost more than 10 topics here I just mentioned. So on the basis of all these 10 topics, okay,
there can be 15 to 17 questions or 15 to 20 questions on the in your mains examination. Okay, this is the syllabus, or this is the points that we will be that you need to cover when it comes to general awareness or static awareness. Let us now source material. Okay, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लास नोट्स. ठीक है, क्लास नोट्स है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप क्लास नोट्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब दोज दैट आर ऑलमोस्ट 120 पेजेस नोट्स आर देयर इन योर, आई मीन विल बी प्रोवाइडेड टू यू. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट I will be explaining some concepts, or some I will be sharing some information with you on via I mean so that are there available with me, or that may not be in the notes, but you can take it as a you can have as a screenshot, or I have previously sent the soft copy to Arya ma'am, so you can ask her to send that. Okay, so this is the class notes plus additional lecture notes. Okay, this is the I mean this might be sufficient for your examination, or for static awareness examination material is concerned, as far as material is concerned. Okay, but I would recommend especially those who are who are focusing also non-banking examination like LIC, or staff selection commission, or railways. They need to cover some topics on Lucent. Okay, but if you are focusing only on banking examination, this is not necessary for your preparation. Lucent is not must for banking awareness. Okay, the material that is provided in class and lecture notes is sufficient for banking awareness material. Okay, so how will we be covering these lectures, or this syllabus? Okay, so apart from this particular two books or two sources, you can always use uh, other sources like Lucent, or any other book that is comfortable for you. Okay, but first your primary focus should be on this. Okay, now let us go to the current affairs. What are the current affairs, or what type of questions are asked from current affairs? Okay, so current affairs, almost 20 to 25 questions are asked from current affairs. Okay, so let me just give an this non-disclaimer that the bifurcation that I've given of this 2025 or 1520 questions might be very different. Okay, so it is not entirely fixed. It depends on the that year's competition, or that year's happening, or something like that. Okay, in 2020 or 2021 examination, because of COVID, there was not much happening on current level. Okay, so everyone so the as a result they have increased the weightage of static awareness. Okay, but you might get only 10% on static awareness and rest on the current affairs. So it is very dynamic. Okay, but having said that, so we need to focus on some number in order to move ahead. So I am focusing on these numbers. At least 20 to 25 questions will be there in your examination of general awareness and current affairs, or banking awareness and current affairs. So what type of current affair question is asked? Okay, let us see that. First, important schemes in news. Important government schemes in news. So what type of question they can ask? So say for example type 1,
they will ask you the objective of the scheme. What is the objective of the scheme? Let us say let us say Ujala or Ujwala Yojana is asked. So what is the objective of the Ujwala Yojana? ठीक है, तो उज्ज्वला योजना का ऑब्जेक्टिव है कि जो वुमेन है तो उनको स्मोकलेस चूल्हा, आई मीन जो ये है उनका फॉर देयर कुकिंग पर्पजेस उनको गैस प्रोवाइड करना, गैस कनेक्शन प्रोवाइड करना उज्ज्वला स्कीम में, सो दैट दे कैन हैव देयर किचन स्मोक फ्री. ठीक है, सो देयर आर वेरियस डिसीजेस दैट आर एसोसिएटेड विद in-house pollution. ठीक है, so and especially women are subjected to in-house pollution, so that is the objective of that scheme. So you can expect some question that objective of the scheme. Next type of question can be asked in your examination. It is the full form of abbreviation used for scheme. Let us just a minute. Abbreviation used for scheme. Let us say there is a one scheme called Shreyas. Okay, this the full form of Shreyas scheme is, so for example Shreyas scheme. The full form of Shreyas scheme is scheme for higher education youth in scheme for higher education youth in apprenticeship and skill. So basically it is to improve the skills or apprenticeship of the youth. ठीक है, apprenticeship and skills, this is the full form. So you can expect such question. ठीक है, so there are various schemes that are used in the abbreviation form. Okay, next question can be asked like state and scheme. So they will give you one name, say for example like just a minute. They will give you the name of particular scheme and they will ask you to recognize of which state that particular scheme is. So these are the three types of questions that can be asked from the scheme. Okay, either either there will be only one question or more than one question. So more than one question is expected from scheme. Okay, because they are various so there are various schemes that are going on, especially for past 7 8 years. There are various schemes, there are various new schemes that are going on. So ये आपको करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा ये देता है. ठीक है, आपको सिर्फ उस स्कीम का नाम और उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. ठीक है, देर आर लेस चांसेस की दे विल आस्क यू अबाउट डिटेल्स ऑफ द स्कीम. ठीक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स में आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पता होके मतलब नहीं है. आपको उसके जो और एक दो ऑब्जेक्टिव है, साइड मेन ऑब्जेक्टिव एंड बफर ऑब्जेक्टिव और सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द current affair question for one. Then this next type of question on current affair is important treaties or MOUs or pact between various organizations, both private and government. So this is very
I mean, this is with the most likened type of question by especially IBPS. IBPS को ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस पूछना बहुत अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइजेशंस बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक. तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पेशली फॉर एग्जांपल SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड IIT, let us say IIT Guwahati. Okay, I have entered into a platform, or I have entered into a pact for cyber security. So they will ask the question like that. So with which of the following institutes or which of the following IITs State Bank of India have entered into a MOU or pact in order to provide cyber security to its customer. ठीक है, so they will give you IIT Bombay, IIT Madras, IIT Chennai और IIT Guwahati and IIT say Kanpur. ठीक है, so you will have to answer the correct. ठीक है, so this type of question. So यहाँ पे private भी पूछा जा सकता है कि SBI और लेट अस से PNB ने, ठीक है, सो अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए आजकल जो बैंक है वो अलग अलग बैंक एश्योरेंस ये करती है. स्पेशली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बैंक एश्योरेंस, जो बैंक एश्योरेंस एक प्रकार का ट्रीटी होता है वो साइन करती है. ठीक है, बैंक एश्योरेंस. तो बेसिकली बैंक एश्योरेंस का मीनिंग है बैंक एंड इंश्योरेंस. ठीक है, so insurance companies, especially private insurance companies and public also, they are entering into treaties or pacts, or they are entering into partnership with various banks in order to sell their various insurance products via bank branches. मतलब होता क्या है, सपोज LIC और एक सपोज प्राइवेट है कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस ने लेट अस से कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस एंड IDBI बैंक ने एक बैंक एश्योरेंस का जो उनका प्रोजेक्ट है, बैंक एश्योरेंस का पार्टनरशिप साइन किया है या फिर एक बैंक एश्योरेंस का डील साइन किया है. तो यहाँ पे होता क्या है, सो IDBI branches, so all over India, in IDBI branch they will try to sell the products of Kotak Mahindra Insurance. ठीक है, suppose, so what is there for bank, ठीक है, suppose they have asked around hundreds of their customer, and say for example some of them, because it is backed by their own bank, so there is a trust generated with this particular insurance company, and they will so there are more chances कि जो कस्टमर है बैंक के वो बैंक के थ्रू इस इंश्योरेंस कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट को खरीदेंगे. ठीक है, तो होता क्या है कि बैंकिंग, मतलब आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द बैंकिंग बैंक एश्योरेंस डील और बैंक एश्योरेंस पैक्ट देयर. तो होता क्या है कि कोटक महिंद्रा का कस्टमर बेस बढ़ता है, और अगर किसी IDBI ब्रांच के थ्रू कोटक महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट मतलब बिकता है या फिर सेल होता है इंश्योरेंस का कोई भी, तो IDBI बैंक को बेनिफिट मिलता है पर कस्टमर. ठीक है, तो ऐसे ये विन विन सिचुएशन होती है, तो इसे बैंक एश्योरेंस कहते हैं. ठीक है, मोस्टली जो SBI जैसे बड़ी बड़ी बैंक है जिनके खुद के इंश्योरेंस आर्म है, वो अपने इंश्योरेंस आर्म के जो प्रोडक्ट्स है वो अपने ब्रांचेस के थ्रू बेचते हैं. लेकिन कोई जो बैंक है वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, स्पेशली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऐसे पैक करती है, ऐसे डील करती है ताकि दोनों को फायदा हो सके. तो ऐसे आपको पूछेंगे कि किसने किस इस पर्टिकुलर, मतलब फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा कंपनी ने किस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस का एग्रीमेंट किया है, बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट. ठीक है, ऐसे वो पूछ लेंगे. ठीक है, सो हियर this especially this particular topic you can expect more than 3 questions, ठीक है, right. So this is very important from exam point of view, important treaties MOU. so यहाँ पे दो देशों के बीच में अगर हो, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया और
अब कैरेबियन जो आइलैंड है, कैरेबियन में एक डील हुआ था, या फिर इंडिया और यूएई में डील हुआ है कि यूएई में क्या होगा, आईआईटी होगा। ठीक है, भारत के बाहर पहला आईआईटी हुआ यहाँ होगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग डील है। ठीक है, सो इंडिया जिस जिस देशों के कंट्रीज के साथ ऐसे अलग अलग डील करता है, वो सब हमें करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये आपको हम ये कवर करेंगे जो आपको मैगजीन्स क्लास से मिलेंगे 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, वो सब चीजें यहाँ से आपके कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो होगा मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज एंड डिफेंस रिलेटेड न्यूज, डिफेंस न्यूज। अब मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब इंडिया is conducting number of exercise military exercises with other countries. Okay, say for example India and Russia Maitri exercises, Indra exercises there. India and Russia Indra, India and Russia Indra exercises there. ठीक है, और Malabar exercise is there, uh, which includes India, USA, then Japan and Australia. Malabar exercise. ठीक है, so this is the this type of question set. So what type of question they will ask? They will give you the name of the exercise, and they will ask to identify with which of the following countries uh, India undertakes these particular exercises, or they can ask you they can give you the name of the countries. Say for example India, Russia, and they will give you the 5 names, and you have to identify the correct name. ठीक है, name of the exercise or countries. ठीक है, this again will be covered in class notes only. ठीक है, the lecture notes only. I have made notes of various exercises that are there in the current affairs for yourself. ठीक है, for you. Okay, defense news मतलब if India is entering into pact with any foreign country in order to purchase or sell defense equipment, that becomes important news for us. ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद important books and author, sorry, important books and author. Okay, so for example, they will ask you the they will give you the name of the book, and they will ask you the name of the author. So name of the book will be given, and they will ask you the name of the author. So for example, Gruhabhanga is book of S.L. Bhairappa. ठीक है, it is recently published. ठीक है, so recently published हमें करने हैं last 6 months के। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल, दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल। सो लास्ट 6 मंथ्स, स्पेशली लास्ट 6 मंथ्स के हमें ये करने हैं। ठीक है, इज इट क्लियर विद एवरीवन? इज एनीवन हैविंग डाउट रिगार्डिंग दी वॉट एवर वी आर जस्ट डूइंग? अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस राइट, so this is the this another type of questions that can be asked. Next type of question on the current affair aspect is banking news and banking news or economic news. So for example, they will ask you the news from information on budget. So what is the allocation of particular ministry, or what is the budget allocation? Yeah, they will and they will ask you the
इकोनॉमिक से फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर आपको पूछेंगे, बजट के ऊपर आपको पूछेंगे, ठीक है, ऐसे अलग अलग बैंकिंग और इकोनॉमिक न्यूज में आपको पूछेंगे, ठीक है। और दे विल आस्क यू द important reports by banks or RBI, reports by RBI, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन करंट अफेयर इज रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स तो हम लोग वी हैव सीन इन द स्टैटिक पार्ट, लेकिन रिपोर्ट्स में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, सपोज 2022 का जो लेटेस्ट रिपोर्ट होगा अलग अलग, उसमें आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक, उस रिपोर्ट का नाम या फिर अलग उसका कुछ थीम है क्या, देन फर्स्ट कंट्री उस रिपोर्ट में, एंड लास्ट कंट्री, ठीक है। सो फर्स्ट टू कंट्रीज एंड फर्स्ट टू कंट्रीज और फर्स्ट थ्री कंट्रीज, ठीक है, फर्स्ट थ्री कंट्रीज एंड लास्ट थ्री कंट्रीज, एंड रैंक ऑफ इंडिया, ओके। सो दिस इज फॉर, सो ये आपको जो साल भर में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर इंडेक्स आए, इंडाइसेस आए हैं, वो हमें करने हैं। सो फॉर एग्जांपल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ऐसे अलग अलग है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स है, ऐसे अलग अलग है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मतलब कितना करप्शन होता है, इसका जो मेजरमेंट है वो, ठीक है। तो इसके जो स्टैटिक पार्ट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस दिस रिपोर्ट, ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन, विच पैरामीटर, एक्सेट्रा, ठीक है। बट दिस इज फॉर स्टैटिक, but for current affairs, as I mentioned over here, theme of that year and first and last countries, ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट कंट्रीज एंड रैंक ऑफ इंडिया, तो ये दोनों चीजें हमें कवर करनी है, एंड रैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस इज अराउंड नेक्स्ट टाइप ऑफ करंट अफेयर क्वेश्चन इज रैंक ऑफ इंडिया, रिपोर्ट्स, इंडाइसेस, ऑब्ituaries, ठीक है, यानी डेथ्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमें जो persons that have passed away, they will ask you the field, so deceased person or persons who have passed away person, and their field, ठीक है। अब सो रिसेंटली शिव कुमार, पंडित शिव कुमार शर्मा पास्ट अवे, ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा, तो ही वॉज संतूर प्लेयर, संतूर, ठीक है। सो दे विल आस्क यू द विच टाइप ऑफ ऑर्गन ही यूज टू प्ले फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। So this is the another type of current affair questions. Next type of current affair questions can be obituary dates and reports, invasions, and important international news. So this is the very vaguely, I mean vaguely worded भी है, और very vague topic और very vast topic भी है, क्योंकि यहाँ पे randomly कुछ भी पूछेंगे, मतलब से फॉर एग्जांपल दुनिया का पहला जो वॉकेबल 3D ब्रिज है वो कहाँ पे बनाया था,
ऐसे मतलब कुछ रैंडम फैक्ट्स पूछ लेंगे, ठीक है, ज्यादातर रैंडम फैक्ट्स, लेकिन इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर न्यूज में है ऐसे फैक्ट्स हमें पूछ लेंगे कि ये कहाँ पे हुआ था, एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये कुछ 7 to 8 टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे, 15 to 20 odd 20 to 25 odd questions are asked in this particular section. Okay, now is it clear everyone कि कैसे करना है क्या, मतलब सिलेबस तो क्लियर है, कुछ उसमें अगर डाउट है तो बात कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस से लेट अस स्टार्ट विद द हमें मतलब ये जो सब चीजें हैं हम आपको कैसे कवर करनी है, हाउ टू कवर दिस ऑल दोस थिंग्स, how to cover basically. So for current affairs, I would recommend to start reading English newspaper, either The Hindu and or Indian Express. इसके बहुत सारे फायदे हैं आपको, ठीक है। उसका फर्स्ट बेनिफिट है कि आपको एडिशनल करंट अफेयर आप कवर हो जाएगा, एडिशनल करंट अफेयर्स जो आपके मैगजीन में होगा उससे अगर कुछ एडिशनल है तो आपको एडिशनल करंट अफेयर्स का न्यूज़ मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट होगा, एडिशनल करंट अफेयर्स और स्टैटिक अवेयरनेस, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन जो न्यूज़ में है उसके स्टैटिक पार्ट भी मोस्ट ऑफ दिस न्यूज़ पेपर कवर, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, कि स्टैटिक पार्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। सो एडिशनल करंट अफेयर है, स्टैटिक अवेयरनेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, आपका जो इंग्लिश का वोकेबलरी है, इंग्लिश वोकेबलरी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसको मिलेगा, ठीक है। तो इसका बेनिफिट आपको इंग्लिश वोकेबलरी का, आपका जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो पेपर, इंग्लिश का जो पेपर है वहाँ पे आपको जो पैसेज वगैरह है या फिर जो ग्रामर बेस्ड जो पर्टिकुलर जो ये है क्वेश्चंस है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आपका वोकेबलरी बढ़ेगा, आपका ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग, वोकेबलरी एंड ग्रामर अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल इंग्लिश का बहुत ज़्यादा आपका डेवलप होगा अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो पैसेज में भी आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि हमें इंग्लिश में कम से कम 2 पैसेज आते हैं 5-5 क्वेश्चंस के, तो उस 5-5 क्वेश्चंस के दो जो अगर टॉपिक है पैसेज है वो ज्यादातर करंट अफेयर रिलेटेड या फिर ऐसे होते हैं, फिलोसॉफिकल वगैरह बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आप कर मैगजीन जो मैगजीन के अलावा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सोर्स है आपकी करंट अफेयर मैगजीन, करंट अफेयर्स के लिए। और नेक्स्ट उसका बेनिफिट अगर मैं कहूँ तो हमें ऐसे राइटिंग करना होता है मेंस में, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आपका जो इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग होगा, मतलब पर्टिकुलर इंग्लिश नहीं, मतलब जो करंट अफेयर का जो न्यूज़ है, करंट अफेयर में जो टॉपिक है, से फॉर एग्जांपल द न्यूज़ करंट इवेंट्स अगर न्यूज़ में है और आपको सवाल पूछा है कि जो लेट अस से आपको अगर सवाल पूछा है कि जो ये है रशिया वॉर है उसमें उसका इम्पैक्ट जो होगा वो भारत पे कैसे होगा, ठीक है। अब आप मैगजीन पढ़ रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको जो नॉलेज चाहिए, जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके अलावा आपको जो GDPI जो होता है, यानी GD ग्रुप डिस्कशन एंड PI, वहां पे आपको ओपिनियन आपके बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो ओपिनियन आपका जो है वो इन्फॉर्म होने के लिए या फिर इन्फॉर्म ओपिनियन होने के लिए आपको जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 न्यूज़पेपर है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये मैं चाहता हूँ कि आप पढ़े तो उसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा होगा। आपको पहले लगेगा कुछ दिन के लिए
कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत वक्त जाता है, 2-3 घंटे जाते हैं, तो आपको मे बी यू विल फील बोर्ड अबाउट इट, और यू विल फील कि क्यों पढ़ना है, मैं तो मैगजीन में कवर कर लूंगा, कर लूंगी। लेकिन आपको जब आप एक्चुअली प्रिपरेशन करोगे, जब आप एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्पेशली जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश के वगैरह, तो आपको उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जो न्यूज़पेपर है उसका। नेक्स्ट करंट अफेयर का जो सोर्स है वो क्लास के मैगजीन है, पास्ट 6 मंथ्स मैगजीन। तो ये जो आपको है वो क्लास से कवर करने हैं, मतलब पास्ट 6 मंथ्स, मतलब जो आपका मेंस होने वाला है। लेट अस से योर मेंस इज शेड्यूल्ड ऑन अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 में आपका अगर मेंस होना है, तो आपको मार्च या फिर अप्रैल में, लेट अस स्टार्ट विद मार्च 2022 से जो करंट अफेयर्स के मैगजीन है वो कवर करने हैं, इफ योर मेंस इज शेड्यूल ऑन अक्टूबर 2022। ठीक है, सो 6 मंथ्स मैगजीन बिफोर योर डेट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको क्लास के मैगजीन अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। आप वो आप पहले वो आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, फिर ठीक है, देन आपको जो न्यूज़ है आपका, जो मतलब ओवरऑल, मैं सिर्फ जीएस की बात करूंगा। ये जो मेरा टॉपिक है, जो बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, जो भी इसका मतलब जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ऐसे इसका नाम है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी कैसे करना है हमें। ठीक है, स्ट्रैटेजी। ओके, लेट अस टॉक अबाउट दैट। अब स्ट्रैटेजी का क्या होगा कि जो हमारे 4-5 जितने भी लेक्चर होंगे, यहाँ पे तो मतलब आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ओपनिंग दिया जाएगा, सोर्सेज बताए जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, तो ऐसे सब होगा। लेकिन उसको बिल्टअप कैसे करना है, उसको आपका जो ये सब्जेक्ट है उसको बिल्टअप कैसे करना है। तो फॉर स्ट्रेटेजी आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ दी फर्स्ट, आपको जो नोट्स मिलते हैं, क्लास नोट्स एंड लेक्चर नोट्स, वो आपको थोरोली रिवाइज करने हैं। ठीक है, रीड एंड रिवाइज। मतलब आज का अगर आपका जो टॉपिक शुरू है, ठीक है, मतलब आज सपोज यो तो नेक्स्ट वीक में हमारे ये जो लेक्चर्स है वो खत्म हो गए, तो यहाँ पे उसको छोड़ना नहीं है टॉपिक को। ठीक है, लेक्चर खत्म होने के बाद जो नोट्स आपको मिलेंगे, जो यहाँ पे मैं लिखवा के दूंगा, और जो आप लिखोगे आपके नोटबुक में, उसके जो ये होते हैं, उसका जो मटेरियल होता है वो आपको थोरोली रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन। उसके बाद मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिएगा, टेस्ट सीरीज। ठीक है, ओवरऑल में जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ अगर मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ, तो आपको टेस्ट सीरीज में क्या होगा, जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपकी कहीं पे भी मतलब ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मतलब स्टैटिक इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है ना, तो वो किसी एक नोट्स में या फिर किसी एक बुक में कवर नहीं होगी। तो आपको जो एडिशनल स्टैटिक अवेयरनेस की इंफॉर्मेशन है वो वहां पे कवर हो जाएगी, और एडिशनल करंट अफेयर्स भी, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, ये आपको कवर हो जाएंगे। और आपको जो एग्जाम होगा, जो टेस्ट होते हैं, उसके बहुत ज़्यादा फायदे आपको, जब आप एक्चुअल आप जब दोगे एग्जाम, तो आपको पता चलेगा कि मॉक टेस्ट सॉल्व करने का कितना फायदा होता है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि जो आपका जनरल अवेयरनेस की जो मैं अगर मैं बात करूँ सिर्फ, तो आपको कम से कम 30 टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, 30 टेस्ट। ठीक है, तो आपका एंड दैट इज टू मिनिमम, सो मोर देन 30। ओके, मोर देन 30 आपको टेस्ट सॉल्व करने हैं। ये आपका है। ठीक है, लेकिन कब करना है, जब आपका एग्जाम डेट आएगा, सपोज अगर नोटिफिकेशन आ गया है, तो हमें क्या करना है, जो पहले तो प्रीलिम फोकस करना है, और साथ में इसको करंट अफेयर या फिर जो जनरल अवेयरनेस हमारा जो टॉपिक है, इसको साथ में हमें कवर करते जाना है। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि आपका प्रीलिम का स्कोर अच्छा है
लेकिन प्रीलिम और मेंस में जो समय होता है स्पेशली बैंकिंग में, वो बहुत कम होता है। तो यू शुड नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच आफ्टर प्रीलिम, ठीक है। इन केस यू आर क्लियरिंग प्रीलिम, so that becomes very difficult to cover almost 35 or 40 questions in a given time period, ठीक है। तो करंट अफेयर जो भी है आपके, करंट अफेयर है या फिर जनरल अवेयरनेस जो भी है, आपको वो प्रिपरेशन पूरे साल भर या फिर जब तक आपका क्लास चल रहा है, जब तक आपके एक्चुअली जो ये है आपका प्रिपरेशन जब से शुरू होगा, तब से आपको इसका क्या करना है, मटेरियल जो है वो पढ़ते रहना है और करंट अफेयर्स का इंफॉर्मेशन गैदर करते रहना है, ठीक है। सो ये आज का मतलब बेसिक स्ट्रेटेजी कैसे करना है, क्या करना है, मटेरियल की हम लोगों ने बात की। ओके, सो यहाँ पे ये तो मैं आपको सेंड कर दूंगा लेक्चर्स के बाद, आपको मतलब मैडम को मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए रेफरेंस में ये रहेगा कि हमें क्या करना है वगैरह, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारे लेक्चर्स है उसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, ठीक है। लेक्चर्स में आपको क्या बेनिफिट होंगे और कैसे आपका स्ट्रक्चर होने वाला है, लेक्चर का स्ट्रक्चर ऑफ लेक्चर। सो यहाँ पे मतलब आज के लेक्चर में हम लोग जो अवेलेबल टाइम है वहाँ पे स्टैटिक अवेयरनेस की मैं बात करूंगा कि क्या जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी है, ठीक है। दैट इज इन फर्स्ट लेक्चर। सेकेंड लेक्चर आपको जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बैंकिंग के, इम्पोर्टेंट बैंकिंग कंसेप्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंसेप्ट, एंड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज से फॉर एग्जांपल कल्चर एस्पेक्ट है या फिर डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह जो है वो कल के लेक्चर में कवर हो जाएंगे, एडिशनल स्टैटिक इंफॉर्मेशन। सो इन सेकंड लेक्चर, सेकंड लेक्चर एंड जो आपका जो थर्ड और फोर्थ लेक्चर होगा, थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर, वहां पर हम लोग देखेंगे कि करंट अफेयर्स के मैगजीन को कैसे रीड करना है। मतलब सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, एंड नेक्स्ट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर पास्ट 6 मंथ, ठीक है। मतलब जो कैसे, तो फिर अगर हम लोग ये पास्ट 6 मंथ मतलब आज मई चल रहा है, ठीक है। सो मई के पिछले 6 महीने के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग कवर मतलब दो लेक्चर में कवर होना या फिर 3 घंटे में कवर होना ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको मतलब ये नहीं कहूंगा कि इस पे डायरेक्ट सवाल आएंगे, क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हो अगले साल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर और यू आर अपेयरिंग फॉर डिसम्बर, ठीक है, और योर मेंस एग्जामिनेशन इज अक्टूबर, ठीक है। तो आपको दिसंबर 2021 के सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये जो सवाल है जो हम लोग देखने वाले हैं, ये और ये जो इंफॉर्मेशन है जो हम लोग देखने वाले हैं, तो वो क्या आपको देंगे, वो आपको एक गाइडलाइंस देंगे, आपको एक जो कहते हैं ना, एक गाइड देंगे कि हाँ हमें जो जब हम हमारा 6 मंथ्स का करंट अफेयर हम लोग जब कवर करेंगे, तब हमें सर ने बताया था कि ये टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो हाँ मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो ये हम देखेंगे, ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 लेक्चर में यानी 3 घंटे में सब 6 महीने का सब करंट अफेयर्स खत्म होगा, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, और मैं ऐसे करना भी नहीं चाहता क्योंकि देयर विल बी टू मच ऑन द प्लेट, ठीक है। और आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होंगे, बहुत ही ज्यादा आपको
क्या होगा, ऐसे लगेगा कि क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बम्बार्डमेंट होगा आपके ऊपर। तो मुझे बम्बार्डिंग नहीं करना है, मुझे आपको डराना नहीं है, लेकिन मैं ये ले रहा हूँ किसके लिए, कि आपको अंदाजा आ जाए कि ये 6 महीने में, पिछले 6 महीने में जो हम लोग जो देखने वाले हैं, उस टॉपिक्स को आपको आगे जाके फॉलो करना है, या उससे रिलेटेड कुछ न्यूज आती है तो वो आपको फॉलो करनी है। और जो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस या फिर सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम्स के पहले आती है, तो वो आपको कवर करनी है। ठीक है, मतलब अगर आपकी एग्जाम अक्टूबर में है तो शायद से आपको जनवरी 2000 अक्टूबर 2022 में है, तो शायद से आपको जनवरी 2022 के एग्जाम्स भी नहीं पूछेंगे, क्वेश्चंस भी नहीं पूछेंगे। सो दे विल स्टार्ट यू क्वेश्चन फ्रॉम अप्रैल ऑफ 2022। ठीक है, सो अप्रैल का अगर सिर्फ मैं अप्रैल का कवर करूंगा तो आपको ऐसे लगेगा कि सर मतलब यू विल फील कि एक ही मंथ का कवर हुआ है। लेकिन मैं मतलब मैक्सिमम पॉसिबल में 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जितने में लेक्चर्स जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो मैं आपको अगर देता हूँ या फिर मैं दिखाता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन लिखवा के देता हूँ जो भी है, तो आपको क्या होगा, आपको उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा दिखेगा। कब? आप जब आप खुद की प्रिपरेशन कर रहे होंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, हाँ ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स टू मी दैट ब्रिंग्स मी टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ योर टुडेज डिस्कशन, कि आपका जो स्टडी है, मतलब स्पेशली ये जो ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है, कि मैं आपको क्या है कि ये जो टॉपिक है ना हमारा, स्टैटिक अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये है ना, ये 10 ओनली 20% इज क्लास का जो आपको होगा। बाकी सबको यहाँ मतलब माय पॉइंट इज कि सेल्फ स्टडी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मटेरियल दिया जाएगा, आपको ये बताया भी जाएगा, ये गाइडेंस भी दिया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कुछ कौन सी इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें साइडलाइन करनी है, ये सब भी आपको पढ़ाया जाएगा, ये सब भी आपको समझाया जाएगा। लेकिन जब तक आप आपका so unless and until you start preparing for yourself, unless and until you start reading newspaper, unless and until you start reading magazines, ठीक है, आप ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग जैसे नहीं है। ठीक है, रीजनिंग मैथ्स में क्या है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो यस, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप उसका कुछ थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपको ब्लड रिलेशन सीखना है, तो मैं ब्लड रिलेशन को अगर आपको मैं सिखाऊंगा तो सिखाने का काम सिर्फ 10 मिनट का है। ठीक है, आगे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो 15-20 क्वेश्चन की मैं अगर आपको प्रैक्टिस करूंगा तो आगे जाके आपको नींद में भी वो ब्लड रिलेशन आपको सॉल्व करने आएंगे। ठीक है, आपको सिलोजिज्म अगर सीखना है तो सिखाने का पार्ट सिर्फ 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, आगे जाके सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। वैसे ही टाइम एंड वर्क का भी सिखाने का पार्ट सिर्फ 10 मिनट का है, पाइप एंड सिस्टम का भी सिखाने का पार्ट सिर्फ 10 मिनट का है, आगे सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये जो टॉपिक है यहाँ पे सिखाने का पार्ट कम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है, और गिवन टाइमलाइन में, मतलब ऐसे नहीं है कि लेक्चर्स कम अलॉट है, लेकिन दैट इज द वेरी नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, की आपको जो मटेरियल अवेलेबल हो रहा है क्लासेस से या फिर जहां से भी आप ले रहे हो, तो उसके ऊपर आपको खुद का एक बहुत अच्छे तरह से खुद की प्रिपरेशन बहुत अच्छी आपको करनी होती है। ठीक है, सो अनलेस एंड अनटिल यू प्रिपेयर वेरी हार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको इसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और so mark my word, if you put your 100% for next 6 months, so you can score more than 90% in this particular पेपर। ठीक है, और आपको अगर पोस्ट आपको होल्ड करनी है जल्दी से जल्दी, कोई भी हो, क्लर्क की हो या फिर IBPS PO की हो, SBI PO की हो, कोई भी आपको पोस्ट जल्दी से जल्दी होल्ड करनी है, तो ये जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये जो हमारा टॉपिक है यह आपको उस पोस्ट तक जल्दी पहुंचाएगा। ठीक है, क्योंकि जो रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन एवरेज है। मतलब जो
मैथ्स है, स्पेशली अगर हम लोग मैथ्स के बारे में देखें तो मैथ्स का जो कट ऑफ होता है वो बहुत कम लगता है। सो ओनली 10 to 15 आउट ऑफ 35 इज योर कट ऑफ, ठीक है, 30-35। सेम विथ रीजनिंग, क्योंकि इस मेंस में ये जो पर्टिकुलर रीजनिंग और मैथ्स है, ये दोनों उसने डिफिकल्टी लेवल वहाँ की बढ़ गई है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ने के कारण यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम होता है, लेकिन आपको सो यू हैव टू क्लियर दैट कट ऑफ ऑल्सो। अगर सेक्शनल कट ऑफ है तो कुछ साल वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होता है, कभी कभी नहीं होता है, दैट कीप्स वेरिंग, ठीक है। शायद अभी सेक्शनल कट ऑफ निकाल दिया है उन लोगों ने, ठीक है, लेकिन अगर सेक्शनल कट ऑफ है तो अलग बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस पे अगर आपके बहुत से ज्यादा एफर्ट्स आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप पुट करोगे तो आपको क्या होगा, जो एक कहते हैं ना कि वो एज मिलना चाहिए, ठीक है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हमेशा एज मिलना चाहिए औरों से ज्यादा, ठीक है। तो वो एज जो है वो आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक दे सकता है। सपोज यू आर स्कोरिंग अराउंड 35 और मोर देन 30 आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर आउट ऑफ दिस in this paper, so chances of getting post increases very rapidly, ठीक है, like nothing। so जो भी आप देखोगे कि जो भी आप पोस्ट होल्डर के आप अगर इंटरव्यू वगैरह देखिए, ठीक है, यूट्यूब पे उनके इंटरव्यू वगैरह अवेलेबल है, तो उनका भी अप्रोच आप देखोगे कि वो भी आपको आपको कहेंगे कि स्टैटिक अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा फोकस हमें करना होगा, क्योंकि यही एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है हम लोग उस पर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, ठीक है। हर एक जो स्टूडेंट है, हर एक जो एस्पायरेंट है, ये इक्वल है, ठीक है। मतलब कोई अगर किसी ने कोई कॉन्वेंट मीडियम से पढ़ा है, कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, कोई बहुत सारी अंग्रेजी किताबें पढ़ता है, सो उसको क्या होगा, उसको इंग्लिश में बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, अगर कोई मतलब बहुत आईआईटी वगैरह है, अभी अभी आईआईटी के बच्चे भी आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ देने लगे हैं, ठीक है। तो लोग मतलब कैट बैकग्राउंड का है, एमबीए उसने किया है, आईआईटी नहीं, आईआईएम मतलब एमबीए वगैरह उसने किया है, तो वो क्या होगा, वो एमबीए वाला स्टूडेंट क्या होगा, एमबीए वाला मैथ्स और रीजनिंग में स्ट्रांग होगा। लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक है कि यहाँ पे हर ग्रेजुएशन का बच्चा, हर ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट है, हर ग्रेजुएशन के जो एस्पायरेंट है वो इक्वल है, ठीक है। हर वो बिल्कुल वहाँ यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, और यही आपको गारंटी देता है कि यहाँ पे मैं अगर मेरा खुद का 100% दूंगा तो मुझे पोस्ट जो है वो यही पर्टिकुलर टॉपिक है, वो जो मतलब यही, मतलब ऐसे नहीं है कि बाकी के सब्जेक्ट को आपको इग्नोर करना है, बिल्कुल ऐसे नहीं है, ठीक है। मेरा कहना बिल्कुल ऐसे नहीं है। अनलेस एंड अनटिल यू आर कंफर्टेबल विद रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यू कैन नॉट अपीयर फॉर मेंस, ठीक है। लेकिन मैं मेंस में अगर स्कोरिंग की बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है हमारा, ये आपको स्कोरिंग दे सकता है, ठीक है। So आज I hope you are clear with the syllabus, material, and everything that I have been talking about for past one and almost 1 hour 10 minutes, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। So let's take 1 or 2 minute break, ठीक है। And so try to process that what I've just talked now, and let us start with our topic, that is static banking awareness, ठीक है। let us not stop here, ठीक है। so please don't leave if you are leaving, but हम लोग एक मिनट ब्रेक लेते हैं और हम लोग स्टैटिक अवेयरनेस को शुरू करते हैं, ओके। यस, सो लेट अस स्टार्ट विद स्टैटिक अवेयरनेस। ये आपको ऐसे नोट्स मिला होगा या फिर मिलेगा, ठीक है। दिस इज प्रिपेयर्ड बाय माय नेम इज ओवर हियर, ओके। सो यहाँ पे जो बैंकिंग का स्टैटिक पार्ट है, ये हम लोग कल देखने वाले हैं। आज जो स्टैटिक पार्ट, जो जनरल अवेयरनेस है, एक चीज, जो स्टैटिक पार्ट है इसके भी दो पार्ट है। जो स्टैटिक अवेयरनेस का जो पार्ट हम लोगों ने बात किया था, इसके भी दो पार्ट है। एक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल,
तो इसमें बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री हमें जाननी है, बैंकिंग कैसे हुआ, क्या हुआ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फाइनेंशियल के, बैंकिंग के, और जनरल अवेयरनेस। ये हमारा स्टैटिक के 2 पार्ट है। Yes. So this is the notes that are there, almost 120 pages note. Okay, yes. So these are the yes. Another type of that I must have not mentioned in this. They can ask you the abbreviation and full form. So almost 100 odd full form and abbreviations are given in this notes. So you can cover it. Yes, general static awareness. So this is the general static awareness. This list of chief minister and governors of Indian state. So I want you to just, this is updated, but just for your additional, just for your the, if any changes are there, I want you to just correct this if it is not updated. ठीक है, so आपको क्या करना है, so this is the most of the it is updated by last I guess March में batch हुआ था, so it is updated by March 2022. उसके बाद जो यूपी और इसके इलेक्शन हुए हैं वो यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पे अपडेट करने हैं। यस, जस्ट अ मिनट, समवन, ओके ओके। तो अपडेटेड गवर्नर जो है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस है, बीच में उन्होंने गवर्नर्स के ट्रांसफर भी किए थे, तो ये हमें आपको क्या करना है, गो टू विकिपीडिया। ठीक है, सो विकिपीडिया पे जाना है। सो फॉर एग्जांपल लेट अस okay, so let us give you the example. So go to Wikipedia, Andhra Pradesh. सो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो आंध्र प्रदेश कैपिटल, यहाँ पे 3 कैपिटल है उसकी। मोस्ट इंपोर्टेंट इज अमरावती। अमरावती देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ के अभी जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिचंदन, वही है गवर्नर, और वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यही है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अपडेटेड है, लेकिन गोवा जो है उसका चेंज हुआ है। बीच में क्या हुआ था, बीच में इलेक्शन हुआ था। तो लेट अस सी व्हाट इज गोवाज नाउ चीफ मिनिस्टर। सो गोवा चीफ मिनिस्टर इज प्रमोद सावंत। ठीक है, सो दिस इज सेम, ओके, बिकॉज दे हैव जस्ट वन द इलेक्शन, और वही फिर से क्या बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं गोवा के। ठीक है, सो गवर्नर इज श्रीधरन पिल्लई। सो ये सेम है। अब यहाँ पे एडिशनल चार्ज इनको जो है वो हटा दिया है, तो यहाँ पे है श्रीधरन पिल्लई। तो आपको क्या करना है, आपको आपने अगर इसके जो नोट्स है, if you are taking the hard copy of it, just add the updated governor। ठीक है, तो एडिशनल चार्ज था वो निकाल दिया है, अब है श्रीधरन पिल्लई। सो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, ये आपके अभी के गवर्नर है। ठीक है, सो डायरेक्ट क्वेश्चन स्पेशली क्लर्क टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल कम होती है, और यहाँ पे आपको ऐसे सवाल पूछेंगे कि जो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है वहाँ के, स्पेशली जो स्मॉलर स्टेट्स है ना, लाइक गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, ये जो स्मॉलर स्टेट्स हैं यहाँ के आपको गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये उनका मतलब बहुत ज्यादा पसंदीदा सवाल हो सकता है। ठीक है, आपको ये आएगा। ठीक है, अभी जस्ट लास्ट वीक में ही या फिर 2-3 दिन पहले ही अनिल बैजल जी ने अभी क्या किया है, अभी रिजाइन दिया है। तो जो नया लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट होगा दिल्ली में, तो आपको ये देखना है। ठीक है, तो देखिए कि हमारा अभी भारत में, मतलब जस्ट टू गिव यू द brief about the how states are formed. ठीक है, there are 28 states and 8 union territories. अब ये जो
8 यूनियन टेरिटरी हैं, इसमें दे आर डायरेक्टली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जो प्रेसिडेंट है वो इनके हेड होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट खुद नहीं करते हैं, दे प्रेसिडेंट एक्ट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है। हाँ, तो आउट ऑफ दिस 8 यूनियन टेरिटरीज, 3 union territories have legislature, that means that they have विधान सभा ऑफ देयर ओन। ठीक है, सो हमारे जैसे महाराष्ट्र में जैसे विधानसभा है, या फिर आप अगर दूसरे राज्य से हो तो आपके राज्य में जैसी विधानसभा है, तो वैसे ही विधानसभा इस 3 यूनियन टेरिटरीज में है। वो 3 यूनियन टेरिटरीज कौन सी है? दिल्ली है, और दिल्ली एनसीआर, एनसीआर नहीं मतलब दिल्ली, ठीक है, दिल्ली दिल्ली है हमारा, फिर उसके बाद है पौंडीचेरी, और फिर पुदुचेरी, और जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर, और ये जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब फिलहाल तो नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे सीएम होंगे, और सीएम का क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, यानी मंत्रिमंडल होगा। ठीक है, तो ये अलग है। ठीक है, तो इसके लिए आपको दिखेगा कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कहाँ पे, यहाँ पे दिया है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो अभी अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, तो जो आपको जम्मू कश्मीर के तो नहीं है अभी तक, अब यहाँ पे भी रंगास्वामी ही है। ठीक है, तो ये आपको चेंज करने हैं, मतलब आपको अपडेटेड करना होगा। ठीक है। ये जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लद्दाख के जो राधा कृष्ण माथुर है, जम्मू कश्मीर के जो है जम्मू कश्मीर के भी मनोज सिन्हा ही है। ठीक है। ओके, सो मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्या है, मनोज सिन्हा, और यहाँ के राधा कृष्ण माथुर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये स्टेट वाइज नेशनल पार्क की लिस्ट दी है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो नेशनल पार्क, मोर देन 50 नेशनल पार्क आर देयर इन इंडिया। ठीक है, तो हम सभी हमें फोकस नहीं करने, सभी हमें बाय हार्ट नहीं करने हैं, हमें किस पे फोकस करना है, ये जो अंडमान निकोबार है, या फिर जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, ठीक है, एंड हिमालयन स्टेट्स, ये हमें फोकस करना है, फोकस करना है। इसका मतलब और चीजें सब, मतलब महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हमें पता नहीं होने चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि फोकस, तो चांसेस की ये है कि इन तीनों टाइप ऑफ स्टेट्स में से आपके आएंगे। सो आउट ऑफ 28 देर आर ऑलमोस्ट, सो ये सब मिला के क्या होते हैं, ये सब मिला के 15 के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, सो यहाँ पे भी मतलब आंध्र प्रदेश में और भी नेशनल पार्क होंगे, लेकिन ये जो जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना, तो ये क्वेश्चन ओरिएंटेड बिल्कुल नेशनल पार्क है। ठीक है, आप अगर किसी और जो टफर एग्जाम है, जैसे कि सीडीएस है, यूपीएससी है, ऐसे दो देते हो, तो नेशनल पार्क के बारे में बहुत ज्यादा सवाल आपको पूछ लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क को आपको पूछेंगे, फिर उसमें से कौन सी रिवर जाती है वो आपको पूछेंगे, फिर उसमें से कौन से मतलब वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा यहाँ पे पूछेंगे। ठीक है, वहाँ पे माउंटेन सिस्टम कैसी है, माउंटेन रेंज कौन सा है वहाँ का आसपास का, ये आपको पूछ लेंगे। ऐसे अलग अलग सवाल है, लेकिन ये सब आपको बैंकिंग में नहीं पूछेंगे। बैंकिंग में क्या पूछेंगे, आपको सिर्फ नेम और उसका स्टेट, ये सब, यही आपको एक टाइप होगा। ठीक है, आसाम वगैरह ये सब आपको है। ठीक है, जो सिखाने का पार्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर आपको देखा जाए,
तो बहुत जो बैंकिंग का पार्ट है वहाँ पे ही है, और वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, कल के लेक्चर में। लेकिन जो फैक्चुअल पार्ट है वो बहुत ज्यादा है। ओके, सो गोवा, यहाँ पे भी देखिए, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ये सब आपके लिस्ट में ऑलरेडी दिया है। सो कैसे करना है, आप पूछोगे, आप सोचोगे कि सर इतना हम लोग बाय हार्ट कैसे करें। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। सिर्फ आपको काम करना है कि आपको जो नेशनल पार्क है, जो भी लिस्ट में आपको दूंगा, और भी बहुत सारे नेशनल पार्क है, मैं सॉफ्ट कॉपी जो है वो मैडम को या फिर सर को मैं हैंड ओवर कर दूंगा, मेरे पास जो है अवेलेबल। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एडिशनल, आपको अगर करने हैं तो एडिशनल भी मटेरियल आपको मैं दे दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक, सो एवरी डे 3 स्टेट्स आपको लेने हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपने 3 स्टेट्स लिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो इन 3 स्टेट्स में जितने भी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क आपको कवर करने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैं एक दिन में सभी स्टेट्स के सभी नेशनल पार्क पढ़ूंगा और फिर पढ़ूंगी और मुझे वो सभी याद रह जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे उसको कैसे करना है, सो 1 डे एट ए टाइम। क्योंकि आपको एकदम से सब याद आएगा क्या, नहीं। आप एकदम से सब कवर कर पाओगे क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको धीरे 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 ये सब आपको बिल्टअप करना है। सो डेली का, अगर आप स्टार्टिंग में, आप अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो आपका प्रिपरेशन, तो आप डेली के मतलब इसके लिए अपार्ट फ्रॉम योर इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स, आप अगर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ आप बैंकिंग की पढ़ाई कर रहे हो और आपके पास कोई अदर एक्टिविटी नहीं है, मतलब आप कॉलेज में नहीं जा रहे हो अभी, आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे हो, यू आर फुल फ्लेज फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम ओनली, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको दिन से, मतलब कल से ही या फिर मंडे से आपको कम से कम दिन के 1.5 आवर्स आपको क्या करना है, ये जो जनरल अवेयरनेस की बातें जो है आपको पढ़नी है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, सो मंडे से स्टार्ट कीजिएगा। पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना, स्टार्ट न्यूज़पेपर। सो बहुत आपको डिफिकल्ट जाएगा शायद। ठीक है, अगर आपको आदत नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा, शायद से 3 घंटे भी लगेंगे। लेकिन न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, सिर्फ एडिटोरियल। आपको स्पोर्ट्स वगैरह ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एडिटोरियल एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक न्यूज एंड एडिटोरियल, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल पॉलिटिकल न्यूज बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, करंट अफेयर मतलब जो स्पोर्ट्स वगैरह है वो बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इस पे ही फोकस करना है। और ये मतलब आप देखोगे कि सिर्फ टोटल, आप देखोगे कि सिर्फ एक 5 पेजेस है, मतलब लेस देन 5 पेजेस, सॉरी ये मोर देन हो गया। सो 4 पेजेस आपको, सो एडिटोरियल के 2 पेज और इकोनॉमिक के 2 पेज अगर है तो, सो 4 पेजेस से ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। तो इट विल नॉट टेक योर मोर देन 1 आवर फॉर स्टार्टर्स। ठीक है, जो आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप अगर प्रो है तो मतलब आई कुड रीड दिस इन ओनली 30 मिनट्स में मेरा ये खत्म हो जाता है पढ़ के। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे आदत पड़ गई है। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो टाइगर रिजर्व है, मतलब नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में फर्क इतना ही है कि नेशनल पार्क जो है उसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब ओवरसी करता है। नेशनल पार्क को एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये इसका सुपरविजन करती है। ये बस यही फर्क है, बाकी सब सेम है इसका। ठीक है, हम एनवायरनमेंट की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो हमें ये मतलब उसके डिफरेंस है वगैरह ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता नहीं होगी तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये है लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स। ओके, तो स्टेट वाइज दिए है फिर से। न्यूक्लियर पावर प्लांट देखिए स्टेट वाइज, थर्मल पावर प्लांट मतलब सो कोल बेस्ड, तो यहाँ पे कोल या फिर नेचुरल गैस के बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, स्टेट वाइज। तो यही आपको अगर ऐसे ऐसे, सो एक दिन में 3 अपने स्टेट चुने,
ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगेन आपने ये 3 स्टेट चुने हैं, तो यहाँ के नेशनल पार्क करने हैं, यहाँ के टाइगर रिजर्व करने हैं, यहाँ के अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वो करने हैं, थर्मल पावर प्लांट है तो वो करने हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो वो करने हैं। ठीक है। सो एक ही 3 स्टेट लीजिए और उनके अलग अलग एस्पेक्ट को आप दिन में रीड कीजिएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी और आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में नेशनल पार्क कौन से ये है, महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व कौन से ये है, महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट कौन से है, ये सब है, महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, ये है। ठीक है। तो ऐसे आपको क्या होगा, मतलब आपके टॉपिक भी कवर होंगे और आपका स्टेट भी एक कवर हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक देखिए, यस, यहाँ पे कभी कभी मतलब वन और टू वन वन कभी कभी स्टैटिक अवेयरनेस में एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ लेंगे इसके बारे में कि आपको सिटी देंगे और आपको पूछेंगे कि वो सिटी कौन से रिवर पे स्थित है। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट सिटीज है ना, मतलब बिल्कुल यहाँ पे जो है वो आप सिर्फ करो, यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट सिटीज है, सिटीज जो है वही दी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटीज ही है, बाकी बिल्कुल जो छोटी छोटी गांव वगैरह है ये बिल्कुल आपको नहीं दिए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आपको ये भी मतलब सेम। ठीक है। सो ये मतलब महाराष्ट्र में वैसे मतलब बहुत सारी नदियां है महाराष्ट्र में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज है महाराष्ट्र में, लेकिन नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है। यस। इंपॉर्टेंट डैम्स, रिजर्वायर्स एंड रिवर्स। सो ये डैम है और ये किस रिवर पे स्थित है उसकी इंफॉर्मेशन है। ये है तमिलनाडु वगैरह के। ओके। रिवॉल्यूशंस, अब ये रिवॉल्यूशन जो है भारत में सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन हुआ था, वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन उसके साथ साथ भारत ने अलग अलग 8-10 प्रकार के रिवॉल्यूशन अब भारत में चल रहे हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा लेवल पे जाके उसका बदलाव होना। ठीक है। सो चेंज एट मैक्सिमम लेवल। ठीक है। रिवॉल्यूशन मतलब इसका मतलब सडन चेंज भी होता है, लेकिन हम लोग अगर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की में बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर कुछ बदलाव होते हैं, तो उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। जनरली ये जो रिवॉल्यूशन है ये एग्रीकल्चर फील्ड से ही रिलेटेड है, या फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लू रिवॉल्यूशन देखिए, फिश प्रोडक्शन से, तो ये अलाइड एक्टिविटी है। ठीक है। ब्राउन रिवॉल्यूशन देखिए, कोको, नॉन लेदर प्रोडक्ट्स वगैरह। ठीक है। तो ये कॉफी से रिलेटेड है, कोको से रिलेटेड है। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर से है, हनी और फ्रूट इनको भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर वो है जूट प्रोडक्शन से है। पिंक रिवॉल्यूशन ये ओनियन या फिर प्रॉन प्रोडक्शन से है। ठीक है। और फार्मास्यूटिकल को भी पिंक रिवॉल्यूशन से जाना जाता है। फार्मास्यूटिकल में जो ग्रोथ हो रही है उसको भी पिंक रिवॉल्यूशन से जाना जाता है। ये रेड, सिल्वर, सिल्वर फाइबर, राउंड, व्हाइट और ग्रीन, ये सब अलग अलग। ठीक है। रिवॉल्यूशन है। हेडक्वार्टर्स एंड टैगलाइन। सो टैगलाइन ये जो है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने सीईओ एमडी वगैरह जो है वो लास्ट मतलब लास्ट मार्च 2022 तक आपको यहाँ पे दिए है। तो आपको सिर्फ जाके ये अगर चेंज है तो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। ये सब चीजें आपको सिर्फ अपडेट, ये आप ये जो कॉलम है वो आपको अपडेट करना है। ठीक है। ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको स्पून फीडिंग ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया सेल्फ स्टडी है वो इम्पोर्टेंट है, तो स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं होगा, आपको खुद से भी मेहनत करनी होगी। ठीक है। और आपको क्या करना है, अब अगर आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट सर्च करोगे तो ऐसी, अब जनरली एक वेबसाइट सर्च करते हो तो सिर्फ या फिर आप विकीपीडिया पे अगर सर्च कर रहे हो
तो आप उसकी जनरली बाय नेचर आप यू विल रीड अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो, ठीक है। सो मेरा पर्पज वही है कि आपको अपडेटेड कैसे होना है ये आपको सिखाना मेरा काम है, और मतलब जनरली आपको कैसे कवर करनी है न्यूज, कैसे आते हैं, ऐसे ये मेरा काम है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बैंकों के जो इम्पोर्टेंट बैंक है उसके हेड दिए हैं, आपको सिर्फ उसको अपडेट करने हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी चेंज होंगे, जनरली मैक्सिमम 10% विल बी अपडेशन, रेस्ट विल बी सेम। मैक्सिमम 10% आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी आपको यहाँ पे जैसा है अब वही इंसान आपको वहाँ का सीईओ या फिर जो एमडी वगैरह है वो मिलेंगे, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं, ये ऊपर के प्राइवेट सेक्टर बैंक के थे, ठीक है। लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स, हाँ ओके आई गेस 12, हम लोग एक 2 मिनट और लेते हैं, 2-5 मिनट, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि 9:30 हो गए हैं, यू मस्ट हैव यू मस्ट बी वेरी हंग्री रहे हो, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स, ठीक है। सो आपको जो मतलब दे विल नॉट आस्क यू दी फॉर एग्जांपल हैदराबाद एयरपोर्ट कहाँ पे है, ऐसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। दे विल गिव यू द स्पेसिफिक नेम, सी वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड दे विल आस्क यू द सिटी, ठीक है। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दे विल आस्क यू द सिटी, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। तेजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दे विल आस्क यू द सिटी, अरुणाचल प्रदेश तेजू, ठीक है। सिटी इन द सेंस दैट स्टेट और सिटी ऑलवेज, ठीक है। ये आपका अलग अलग ये मतलब वर्टिकल अलग अलग है। सी पोर्ट्स जैसे कि है वैसे ही, मतलब जो एयरपोर्ट से वैसे ही सी पोर्ट्स। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके करंट हेड जो है यहाँ पे भी आपको अपडेट करना है सेम। यहाँ पे ज़्यादा अपडेट नहीं होगा, 90% सेम होंगे, 10% आपको सिर्फ अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेम प्रोसेस, यूज ऑफ विकीपीडिया। तो ये है यस इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस। लेकिन यहाँ पे आपको यू कैन इफ यू कैन स्किप इट इफ इट इज नॉट, आई मीन ये पहले पूछे जाते थे, अभी नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं हाईलाइट करवा के दूंगा। यहाँ पे देखिए फेस्टिवल है, कुछ फेस्टिवल में और कल देने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट स्टेट वाइज, यस इम्पोर्टेंट अवार्ड्स, यस इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं यहाँ पे अलग अलग, ठीक है। सो ये आपको अवार्ड में कैसे होगा कि आपको स्टैटिक में कैसे पूछेंगे कि स्टैटिक में आपको अगर अवार्ड का न्यूज़ है तो अवार्ड और फील्ड पूछेंगे, अवार्ड एंड फील्ड। बट करंट में आपको अवार्ड एंड उसके जो विनर है, अवार्ड एंड विनर पूछेंगे करंट में आपको, अवार्ड एंड विनर। तो हमें पिछले 6 महीने के जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है उसके विनर करने हैं, मतलब ऑस्कर वगैरह हो गया, ठीक है। ऑस्कर में बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर वगैरह ये सब हमें करना है, ठीक है। तो देखिए फील्ड है यहाँ पे अलग अलग दी है, ओके। लिस्ट ऑफ फेमस इंडियन सिटीज एंड देयर निकनेम्स, सो ये भी आप मतलब यू कैन रीड इट। सो आइदर जो मैंने बोला था ना कि बहुत रैंडम से सवाल आते हैं, तो ये एक रैंडम टाइप सवाल है, ठीक है। तो चांसेस 90% मतलब इतने नहीं है इसके आने के, लेकिन 10-15% चांसेस है कि ये पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 12:35 ओवर हियर, ओके। सो लेटेस्ट stop here for today. I mean, I can sense that. Let us stop here for today, and we will meet tomorrow again. So tomorrow, same time.